नमस्कार दोस्तों, अगर आप रसिया में काम कर रहे हो इलीगली तरीके से या फिर लीगली तरीके से, तो यह वीडियो स्पेशल आपके लिए है। देखो, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इलीगली तरीके से रशियन पुलिस काम करने वालों को किस तरह से पकड़ती है, पकड़ने के बाद रशियन पुलिस कहाँ पर भेजती है और क्या प्रोसेसिंग होता है, कितने रूबल का फाइन होता है, और अगर पुलिस आपको पकड़ लेती है इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होगी कि आपको कानूनी तौर से छोड़ा जाए। देखो, सबसे पहले आप इन वीडियो को देखिए। वीडियो में किस तरह से रशियन पुलिस, जो लोग इलीगली तरीके से काम कर रहे हैं, इनको आप देखिए। В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2024» сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Крым при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии на территории строительного объекта города Ялты проверена законность пребывания иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В результате рейдового мероприятия сотрудниками полиции выявлено 55 иностранных граждан, которые находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного контроля. По факту выявленных нарушений сотрудниками полиции в отношении иностранцев составлено 99 административных материалов. 33 иностранным гражданам, грубо нарушившим законодательство Российской Федерации в сфере миграции, закрыт въезд на территорию Российской Федерации. В настоящее время ведется работа по установлению и привлечению к ответственности работодателя, который допустил незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Работа в данном направлении продолжается. रसिया के अंदर एक्चुअली में क्या है कि इलीगली तरीके से काम करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रशियन लोगों की संख्या घटती जा रही है। Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Кабардино-Балкарской республике в рамках операции «Нелегал-2024» совместно с сотрудниками регионального УФСБ и СОБР Росгвардии по КБР в целях осуществления федерального государственного контроля, надзора за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и трудовой деятельностью иностранных работников организовали проверку на территории швейного предприятия, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью, расположенного в одном из микрорайонов Нальчика. В ходе проведения мероприятий установлено, что руководитель предприятия привлек к трудовой деятельности граждан одной из ближневосточных стран, не имеющих разрешения на работу, необходимого иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. По результатам проверки в отношении иностранных граждан составлен 31 протокол по части 1 статьи 18.10 Кодекса об административных правонарушениях и 31 протокол по части 1 статьи 18.15 в отношении юридического лица. Дела об административных правонарушениях направлены в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу. Тоже пацанка? Юзер договор должен быть. Договор есть? Пальцы правой руки. Сейчас левая ладонь. Левая. देखो, रशियन पुलिस से बच नहीं सकते आप। अगर आप इलीगली तरीके से जॉब करते हो, रशियन पुलिस को पता चल जाता है कि वहाँ पर बंदे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो, अगर आप अपार्टमेंट का दरवाज़ा भी बंद कर लेते हो, तो रशियन पुलिस के पास सारा ऑप्शन होता है। वो ग्राइंडर वगैरह लाएंगे और दरवाजे को काटने स्टार्ट कर देंगे और आपको बाहर निकाल लेंगे वो लोग, है ना। Сотрудники служб и подразделений Министерства внутренних дел по Донецкой Народной Республике совместно с представителями региональных управлений Федеральной службы безопасности и Росгвардии провели очередной этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024». К стене! Ноги шире! Шире ноги! Руки выше! Выше руки! Серия рейдов прошла по нескольким республиканским городам и затронула места массовой концентрации иностранных граждан, адреса их проживания и осуществления трудовой деятельности.
За время проведения рейдовых мероприятий выявлено свыше 200 административных правонарушений миграционного законодательства. Установлено 2 факта незаконной регистрации иностранного гражданина по месту жительства, а также 7 случаев фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания. Правоохранители выявили 2 факта. На территории Тюменской области проведен второй этап федеральной комплекс. Полицейскими составлено 419 административных протоколов по статье нарушения иностранным гражданинам режима и правил пребывания на территории Российской Федерации. 70 протоколов по статье пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. И 13 протоколов по статье незаконное трудоустройство иностранного гражданина или лица без гражданства. В ходе мероприятия взыскано штрафов на сумму около 700 тысяч рублей. Судами в отношении 96 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации и 15 решений о неразрешении их въезда на территорию Российской Федерации. Кроме того, в результате рейдов выявлено 4 гражданина, находившихся в федеральном розыске, и возбуждено 5 уголовных дел по статье «Фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации. Работа, направленная на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства на территории Тюменской области, продолжается. Ты понимаешь, что я говорю? Нет? Сертификат твой где? Полицейские. В ходе рейдов сотрудники Управления по вопросам миграции регионального ОМВД и госавтоинспекции совместно с коллегами из других силовых ведомств проверили объекты, где проживают и трудятся иностранные граждане. В результате составлено 118 административных протоколов. Самым частым стало нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. Возбуждено 19 уголовных дел за незаконное пересечение государственной границы. В отношении 44 иностранных граждан вынесено решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. 23 мигранта будут выдворены из страны, 6 из них в принудительном порядке. В данный момент они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России. День добрый. Управление по вопросам миграции, отдел миграционного контроля. Документы ваши, будьте любезны. Добрый день. Управление по вопросам миграции, отдел миграционного контроля. Документы, будьте любезны ваши. Документы, будьте любезны. तो इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ की पुलिस और यहाँ की गवर्नमेंट गंभीरता से काम कर रही है इलीगली तरीके से काम करने वाले लोगों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लीगली तरीके से आप रसिया के अंदर किस तरह से आप जॉब कर सकते हो, क्योंकि लीगली तरीके से काम करने के लिए भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपने वीज़ा ले लिया और आप रसिया के अंदर खुलेआम जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। वीज़ा लेने के बाद यहाँ पर आने के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। पहला आता है वैलिड पासपोर्ट। वैलिड पासपोर्ट पर वैलिड वीज़ा होना चाहिए आपका, वर्क वीज़ा या फिर पटेंट जो भी होता है। तीसरा आता है रजिस्ट्रेशन। चौथा आता है डेटा कार्ड फिंगरप्रिंट का। पांचवा आता है मेडिकल जो 1 साल का होता है। और छठा आता है इन कार्ड होता है, वो आपके पास कंप्लीट है तो रशियन पुलिस आपको कुछ नहीं कर सकती, वो आपको छोड़ देगी। तो ये तो हो गया लीगली तरीके से आप किस तरह से आप रशिया के अंदर जॉब कर सकते हो। अगर ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं बल्कि वो आपकी हेल्प भी करेगी। अब दूसरा मैं आपको बता देना चाहता हूँ इलीगली तरीके से किस तरह से आप रशिया के अंदर जॉब कर सकते हो। देखो, अगर आपको इलीगली तरीके से रशिया के अंदर जॉब करना है, अगर आप बड़ी सिटी में करते हो जैसे मॉस्को, सेंट पीटर्स वगैरह में करते हो, तो आप क्या है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जॉब ना करें। जैसे कि कुछ बड़ी कंपनी का, जैसे कुछ बड़ी कंपनी इंस्टॉल हो रही है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वर्कर होते हैं, तो इन जगहों पर ज़्यादा रेड पड़ती है रशियन पुलिस की, है ना। और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी छोटे मोटे काम पर लगे हो जहाँ पर 2-3 बंदे ही काम करते हो, जहाँ पर आपका टाइम पास हो सके, उस जगह पर आप जॉब कर लो, वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर आप किसी रशिया के किसी छोटे शहर में चले जाओ, वहाँ पर आप जॉब करो। वहाँ छोटे शहरों में क्या है कि रशियन पुलिस का थोड़ा इफेक्ट कम होता है,
इलीगली तरीके से रसिया के अंदर काम करना कोई बुरी बात नहीं है। देखो सब लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इलीगली तरीके से काम करते हो रसिया के अंदर, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट है तो आपको रशियन पुलिस छोड़ देगी, वो आपको पकड़ेगी नहीं। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डेटा कार्ड होना चाहिए और मेडिकल होना चाहिए 1 साल वाला। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रशियन पुलिस पकड़ लेती है तो लगभग 2000 से लेकर 7000 रुपये का फाइन आपसे भरवाएगी और वो आपको छोड़ देगी। तो ये तो हो गया इलीगली तरीके से लीगल तरीके से काम करने का प्रोसेसिंग। अब मैं बात करूंगा, अगर आप इलीगली तरीके से हो रसिया के अंदर, जैसे कि आपका पासपोर्ट है वो एक्सपायर हुआ है, या फिर वीज़ा एक्सपायर हुआ है, या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर आपके पास डेटा कार्ड नहीं है, या फिर आपके पास मेडिकल नहीं है, अगर ये चीज़ें नहीं है, उस कंडीशन में जैसे आपको रशियन पुलिस पकड़ लेती है तो आपसे फाइन नहीं भरवाएगी, बल्कि आपको एक डिटेंशन सेंटर होता है रसिया के अंदर। डिटेंशन सेंटर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, डिटेंशन सेंटर फॉरेनर जेल है, एक तरह का वो जेल है फॉरेनर लोगों के लिए। जो भी कोई रसिया के अंदर रहते हुए रसिया का कानून तोड़ता है, फॉरेनर लोगों के लिए, उनको उस जेल के अंदर रखा जाता है। वहाँ पर सारी सुविधाएं होगी, खाने पीने की, रहने सहने की सारी सुविधा होती है। वहाँ पर आपका मोबाइल जो भी कपड़े सपड़े सब वहीं पर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता वहाँ पर। डिटेंशन सेंटर आपको 2 ऑप्शन देंगे कि आसानी से जाने के लिए। देखो, डिटेंशन सेंटर के ऑफिसर होते हैं, पहले आपको ऑप्शन देंगे कि आप फाइन भरो और टिकट खरीदो और आप इंडिया जाओ, है ना। अगर आप ऐप सेट कर लेते हो इस ऑफर को, तो आपको 3 से लेकर 5 साल तक के लिए डिपोर्ट किया जाएगा, है ना। 3 से 5 साल से पहले आप वीज़ा नहीं ले सकते हो रसिया का, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक वकील बुलाओ, वकील के जरिए आप अपना समाधान करवाओ डिटेंशन सेंटर के अंदर, क्योंकि डिटेंशन सेंटर के अंदर भी वकील होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर उनसे सॉल्यूशन नहीं होता है आपका डिटेंशन सेंटर वालों से, या फिर आप सॉल्यूशन नहीं करवाना चाहते हो या फिर नहीं कर पाते हो डिटेंशन सेंटर ऑफिसर से, उस कंडीशन में आपको डिटेंशन सेंटर भेजेगा रसिया की कोर्ट में। वो आपको पेश करेंगे, लगभग 7-8 दिनों के अंदर अंदर वो आपको पेश कर देंगे। तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपके पास कुछ वकील है तो आप बुलाइए, नहीं है तो वो लोग खुद सॉल्यूशन करेंगे, है ना। वहाँ पर आपको 2 से लेकर 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है ना, या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, फिर कम भी हो सकती है, मैं कह नहीं सकता। और वहाँ से जैसे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है, जो भी आप सज़ा वगैरह काट देते हो, और उसके बाद वो लोग आपको वापस अपने देश में भेजेंगे, इंडिया में जो भी होता है। आपको परमानेंटली ब्लैक लिस्ट किया जाएगा कि आप रसिया का वीज़ा नहीं ले सकते हो। देखो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमेशा मेरी वीडियो को देखते हो, वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। चाहे कमेंट्स में मुझे गाली दे दो, लेकिन दे दो, कुछ भी दे दो मुझे, है ना। इससे क्या है कि बस जैसे ही कुछ रिएक्शन आता है आपकी तरफ से, तो मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाले। तो